in and the way air is coming out, and your chest movement. Just concentrate. Okay, so over to Meshji. हाँ, अब I want to introduce Dr. Naresh Garu, physician, and Dr. Srilata, pediatrician. दोनों एक साथ है. So, what are your experiences regarding COVID-19 जो भी चल रहा है? It is you can speak either in English, Telugu, or Hindi. As we have seen, COVID-19 is seen more in the elderly people and. No, I just want to tell one thing. Just recently we came across that children who are born now in American also, Okay. they are dying because of corona if the lady is infected with the corona. Similarly, one case has been reported in India also. Okay. So have you came across any such thing? Yeah, the thing is, this vulnerability is more in the infants compared to the school-going children. Okay. Because these infants, they have the developing immunity, whereas the school-going children, they have come across the many viruses in their school only. Okay. They have developed antibodies like corona, adenovirus. There are many viruses. Corona actually it has been discovered during 1960. Okay. Okay, this novel coronavirus is the recent one. So what is like school-going children, like we have seen that in the children they get more cold and cough compared to the elders. Okay. We get very few times like very high grade fever, whereas in the children, very once in 2 months, once in 1 month, they have fever, cold, cough. You mean to say the immunity part is very low? No, not low. In the children, they can fight very good because they are exposed more to the viruses and they develop antibodies so that they fight. Already they developed so many viruses. So that will give the protection for them in the school going age. Whereas infants like they will be in the home only and they're not exposed to the environment and the immunity is it is in the developing stage. Okay. So when a child is born, as doctors are talking about infant, it is the mother's milk which gives some immunity to the child, but they have not developed active immunity yet. And then they also get some reserve in their body through the placenta when they are fetus. That time some immune bodies go, and they are all passive one, right? And what doctors are talking about an active immunity, when you school going children, they are exposed to so many of these viruses, then their immune system is ready to fight with these. So in the fight they develop some of these symptoms, but they develop active immunity. Somehow common cold is such a virus which keeps changing its nuclear structure every year, and that mutations. So we still develop, but there is some cross immunity perhaps. So some people don't suffer so much. Am I right? Dr. Sharma? नहीं, अपने डॉक्टर नरेश. डॉक्टर नरेश, ओके. उनका शायद स्ट्रक हुआ लगता है. हाँ, स्ट्रक हो गया. डॉक्टर नरेश एंड मैडम इज श्रीलता मैडम. हाँ, श्रीलता, या. उनका एक बार बोलना पड़ेगा. अच्छा, म्यूट हो गया या कुछ डिस्कनेक्ट हो गया. हाँ, वो थोड़ा नेट का प्रॉब्लम आता है. राइट. डॉक्टर नरेश साहब, व्हाट यू वांट टू से, कुछ बोलना चाह रहे हैं? डॉक्टर नरेश एंड डॉक्टर श्रीलता. थोड़ा नेट कनेक्टिविटी स्लो उधर बैंडविड्थ. अच्छा. आप फोन पे या चाहे तो उनको बोल दीजिए if we are not able, whether they are able to listen or not. इस बीच में we can take some questions. Dr. Purohit ji. Dr. Purohit ji, yesterday one Muslim lady along with the 1-year child, they were quarantined 28 days before at Chittoor district. They were released yesterday with the negative result, and they were survived.
And in fact, the relation also, they hesitated to keeping the child along with them, so that the mother carried the child also along with her to the quarantine center, and both survived and came back yesterday safely with negative result. Yeah, that's right. We usually talk about the general, not the anecdotes. I would have not advised if that child was negative, should be taken with the mother. But maybe lucky and some anecdotes. एक छोटी छोटी कोई घटनाएं हमारी साइंस नहीं बनाती है. डॉक्टर श्रीलता, डॉक्टर नरेश. कुछ नेट कनेक्टिविटी में आई थिंक सम प्रॉब्लम इज गोइंग फिर रिकनेक्ट हो रहा है वंस. Okay, okay. Any other question we can take up? One second. Is Dr. Hari is here in line? He is a good plastic surgeon, and perhaps He has come. I think. एक second. Yeah. जी डॉक्टर श्रीलता, डॉक्टर नरेश. हाँ. Yeah, like Yeah, please. थोड़ा डिस्टेंस में जाने के लिए बोलिए. दो फोन एक ही जगह ऑपरेट कर रहे हैं शायद, तो वो प्रॉब्लम होता है. कोई कॉल भी आ सकती है उनके वहाँ. नहीं. सर कृष्णा, दो मिनट ठहरो. कृष्णा. अच्छा. हमारे साथ में अरविंद शर्मा साहब भी जुड़े हुए हैं. हाँ. उनका भी एक बहुत बड़ा उन्होंने जो फिलेंथ्रोपिक काम किया है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपना अनुभव बताएं. अरविंद शर्मा साहब. उनका वीडियो नहीं आ रहा है, दूर से आ रहा है. ऑडियो तो चालू कर दीजिए. हाँ, आप बोलेंगे अरविंद शर्मा साहब, तो वो तो काफी अच्छे जानकार हैं इस डिजिटल के. सबसे पहले उमेश जी को और डॉक्टर साहब को नमन. आपने बहुत अच्छी शुरुआत की हम सभी लोगों को कोरोना के बारे में बताने के लिए, और मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था और बहुत अच्छी जानकारी मिली. तो बीच बीच में इसी तरह हम लोग मिलते रहे, बड़ा अच्छा रहेगा. वेरी गुड, बहुत सुंदर. ये उमेश जी की पहल है कि उन्होंने मेरे को भी ये सिखा दिया है. अरविंद शर्मा साहब, एक बार वो आपका अनुभव प्लीज दूसरों को इंस्पायर करने के लिए बताइए कि आपने पीपी जो किट्स हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स. ये अपना एक फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट है. हेलो, तो आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. बड़े पापा. मेरी हाँ, ठीक है डॉक्टर साहब. देखते हैं. जी, तो अब आना चाहिए. बोलिए आप. हेलो. तो अपना एक फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट है. ये हमने कुछ 5 वर्ष पहले शुरू किया था. इससे कई संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, और टाटा ट्रस्ट का और LIC का भी इनके इसमें सहयोग है. तो अभी मौजूदा हालात को देखते हुए हमने डॉक्टर्स के लिए मतलब पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट वहां से इंपोर्ट किया है, क्योंकि अधिकतर जो लोकली अवेलेबल है उसमें चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं, तो वो उतने रिलायबल नहीं है. तो वो कंसाइनमेंट अभी आया है कि हम लोग को गवर्नमेंट को देंगे, तो गवर्नमेंट उस्मानिया और जनरल हॉस्पिटल में देगी. तो इसी तरह की कुछ मेडिसिन हम रेगुलरली सप्लाई करते हैं. मेडिसिन के लिए हमारी ओर से उनके पास प्रबंध है, और हमने हर जगह हमारे रिप्रेजेंटेटिव को पोस्ट किया. तो छोटा सा स्टेटमेंट हमारी तरफ से देते हैं. वैसे डॉक्टर साहब से बीच बीच में काफी इंक्वायरीज करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, उनसे काफी मदद देते रहते हैं. तो उमेश जी और डॉक्टर साहब, आपका ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है. मेरा नहीं, ये तो उमेश जी को धन्यवाद दीजिए कि मेरे को भी हाथ पकड़ के इन्होंने चलाना सिखा दिया, इस तरह जूम पे आना. सब ये डॉक्टर साहब बोलेंगे. नरेश जी आए फिर लाइन. हाँ जी, हाँ, हो गया कनेक्शन. हाँ. डॉक्टर नरेश. हेलो. हाँ, बोलिए. नो प्रॉब्लम.
आजकल this COVID-19 issue is prolonging, but our concern is how to protect ourselves. Correct. ये अभी 1 महीने 2 महीने से पूरा खत्म नहीं हो जाएगा. Correct. It will take another 1 year True. till we get Vaccine. efficient vaccine. So my concern is we have to protect ourselves and our family members and surrounding them. Very true. Yeah. लंबी लड़ाई है. From now onwards, we have to focus on this only, because this lockdown will complete by next 15 days or probably next 1 or 2 months. But after that, We need to maintain social distancing, as you said. yeah, first thing is social distancing and regular hand washing with alcohol based sanitizer, Okay. and wearing face mask, and in especially in healthcare system, we have to protect all healthcare workers and also bring the new revolutionary things in the healthcare facility. Okay. So, Correct. doctor, as Purohit Doctor has been telling, it will go on for more than 1.5 years to get stabilized. Absolutely. Minimum 1 year. 1 year. So this Because- virus will exist as other viruses like typhoid, malaria. Yeah, same thing. But if you get any vaccine, then it is also a common thing. Correct. So, common cold thing one. After 1 year, if you get a good vaccine, this COVID-19 problem will not be this much severe. On and off seasonal. How, sir, in our area like Godavari Kani, small place, how is the quantum? Godavari, officially we have the only 2 cases. Okay. Those that 2 red zone areas also. And I think those people are also been quarantined. Yeah. So, Quarantine, and there is no other any primary contact cases not reported. okay. So now it is a And green zone now. yeah, now green zone. Already the 2 cases which are positive also has become negative. Okay. So they're planning to change it to the green zone. Okay. But from now onwards, we have to mainly focus how it will be in next 2 months till we get vaccine. Okay. Anything पुरोहित साहब आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बस यही हम सबको अच्छी तरह ध्यान में रखना है कि ये जो प्रिकॉशंस हम सीख रहे हैं, ये सारी की सारी प्रिकॉशंस हमारे धर्म में हमको पहले ही बता रखी है. जो मैं पहले बता रहा था कि गर्भगृह में जहां भगवान है वहां पे किसको जाने की इजाजत है हम सभी जानते हैं. पुजारी पूरा अच्छी तरह क्लीन होके ही वहां जाएगा. उसके बाहर भी कौन जा सकते हैं, उस मंदिर में जाने से पहले किस प्रकार से कपड़े बदले जाते हैं, पद्मनाभम में, त्रिवेंद्रम में और भी जगह होंगे, या आपको नहाकर ही मंदिर में जाना है. मतलब कहने का ये हाथ धो के ही खाना खाना होता है, हाथ मुंह धो के. जुवूद या वुदूज जो होता है मुस्लिम धर्म के अंदर जो अभी हो रहा है, उसमें भी दिन में 5 बार चेहरे को, हाथ को, आर्म्स को और पांव को वास्तव में तो अच्छी तरह धोना चाहिए. रनिंग वाटर में, किसी बहुत बड़े पानी में हाथ डाल के फिर वजूद के लिए नहीं जाना होता है. तो ये ऐसी सारी प्रिकॉशंस यदि हमारी आदत में आ जाएगी तो हम इससे बच जाएंगे. और ये ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज मानिए कि वैक्सीन आए उससे पहले हम ज्यादा सतर्क हैं कि अरे हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं और अपनी रहन सहन की जो क्लीनलीनेस है, हाइजीन है,
स्वच्छ भारत की जो बात कर रहे हैं वो हमारे दिल के अंदर अच्छी तरह उतर जाए, आदत में आ जाए। जैसे कि वो थोड़ी देर पहले मैंने जो डॉगीज की कॉन्फ्रेंस वाला जोक सुनाया था कि बॉम्बे के कुत्तों को ऐसे हिलाते नहीं है वो अपनी पूंछ ऊपर नीचे हिलाते, क्योंकि उसकी आदत में आ गया, वहां कोई स्पेस ही नहीं है साइड में हिलाने का। तो हम लोगों को भी हमारी अब आदत में आ जाना चाहिए। ये हैंड वॉशिंग हुआ, भोजन के समय की हुई, ये सारी इतनी ज्यादा है हमारी संस्कृति के अंदर। आश्चर्य करिए कि अमेरिका जिसमें हर चीज डिस्पोजेबल है, उसके बावजूद, जहां क्राउड नहीं है, उसके बावजूद वहां पे यदि इतनी भयंकर समस्या हो सकती है, तो हमारा देश अपनी संस्कृति के हिसाब से यदि जिएगा तो हम जल्दी से अच्छी तरह कोरोना पर पक्का विजय पालेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ न्यूरोबिक्स का आप बता रहे थे, वो हाँ जी। स्क्रीन पे कुछ बताएंगे क्या? हाँ नहीं, उससे पहले और भी दूसरों के राय हैं, उनके अनुभव हैं, कोई प्रश्न पूछे तो उसके ऊपर जा सकते हैं अपन। मैं वो स्क्रीन को भी शेयर कर लूंगा। यदि श्रीलता और नरेश कुछ बताना चाहें और भी तो। हाँ, This coronavirus problem. 1 सेकेंड, कोई नजदीक 2 फोन लेके बैठे हुए हैं ना, तो ये साउंड आती है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे हो जाए। Hygiene practices that will uh, decrease the infectious disease incidence in future, definitely. As you have said, like cleaning the hands, maintaining the hygiene, this everything has written in the Puranas, everything is there. But the people are become like so lazy that they're not maintaining the hygiene. शॉर्टकट की लाइफ हो गई ना, फास्ट लाइफ। इसलिए तो diseases are becoming more. So after this corona, people, everyone will get a lesson that we have to maintain. So many lessons, sir, like not a single lesson. So Correct. lessons will come out after 1 year. Absolutely. We have to maintain the hygiene. We have to maintain, disinfect the house. We have to clean. We have to be clean, cleanliness and all. Everything. Everyone will become conscious. दीपावली पे जो सफाई की व्यवस्था है हमारी संस्कृति में, वो कहाँ हो रही है आजकल। लोग बाग दीपावली पे जम के नहीं कर रहे हैं ऐसी सफाई। Yes, sir. जी, एंड दे थिंक कि अपना जो ये मकान है आजकल की जमाने का, ये बहुत ज्यादा हाइजीनिक है। ऐसा नहीं है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो ये कीटाणु बैठे ही रहते हैं इन घरों में भी। और वास्तव में ज्यादा जो एसी की व्यवस्था हमने अपने जीवन में कर दी है, उसमें खुली हवा। AC like ozone will getting destroying usage of this much of ACs. Yeah. Also that problem will also come down, son. Like now pollution has dropped to 30% of previous. So in future we'll get the norms like we haven't used below the 22 degrees, 24 degrees centigrade of ACs. No, so that will. I heard like new AC air conditioners, the temperature will be up to 22. 22. Should not go below 22. For in general, please remember 25 degrees centigrade is an optimal temperature for us to be in. Correct. Don't go below the 24, 25. Right. और भी कोई बताएंगे जी? हमारे साथ में इनका कुछ इनपुट मिलेगा और भी जो ज्वाइन किए हैं हमें। भाई साहब आरपी शर्मा जी, भाई साहब कुछ बोलेंगे? मेरे पास में कोई इनपुट तो नहीं है, मैं तो खाली एक मेरा एक डिनर पार्टी में मेरे साथ में क्या हुआ वो शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, शेयर था क्या वहाँ? एक दफा मैं और सुरेश जी दोनों एक डिनर पार्टी में गए। वहां पे एक कंपटीशन रहा कि जो सबसे ज्यादा खाएगा उसको प्राइज मिलेगा। तो हम लोग वहां पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसमें लकीली सुरेश जी को प्राइज मिल गया। अच्छा। तो सब लोग बहुत उनको प्रेज करने लगे, अरे आप तो बहुत खुशनसीब है, आपको प्राइज भी मिला है सबसे ज्यादा और फर्स्ट भी आए हैं। लेकिन फिर भी वो उदास थे। तो लोगों ने कहा, मैंने कहा भाई उदास क्यों है, आपको इतना अच्छा प्राइज मिला है, गिफ्ट मिला है, आप फिर भी उदास है।
बोले ये शर्मा जी है ना, ये बहुत बदमाश है, ये घर पे जाके घर में बोल देंगे कि मैं पार्टी में खा के आया हूँ तो घर वाले मेरे लिए खाना नहीं बनाएंगे। आपको साथ नहीं ले जाना था, घर वाले को साथ नहीं ले जाना। जी जी जी। और भी कई लोग जुड़े थे, वो उनमें से कोई से भी अपना परिचय देना चाहें, है ना। सुशील पालीवाल कौन है? सुशील पालीवाल, वो नाम वो दिख नहीं रहे हैं, शायद उनका रुक अच्छा, जाए, या नाम तो दिख रहा है मुझे। नाम दिख रहा है जी। डॉक्टर साहब। एक बार म्यूट नहीं है ना? आपको स्क्रीन शेयर कर लेंगे थोड़ा सा, एक हाँ। ओवरव्यू हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीक अपन वेडनेसडे को देखेंगे। अभी तो एक बार स्क्रीन शेयर कर लेंगे क्या वो? हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। नहीं, इसमें मैं आपको ये छोटा सी जानकारी ये देना चाह रहा हूँ कि ये जो स्पेनिश फ्लू दिख रहा है, हाँ हाँ डॉक्टर साहब, तो आप ये देखिए कि आज से 100 साल पहले किस प्रकार से व्यवस्था करनी पड़ी थी स्पेन के अंदर, कि वह मास्क तो लगा है पर उसमें एक नली लगी हुई है और वो फिर इस यंत्र से लगी हुई है। इनमें 2-3 तरह की चीजें होती है कि ये किस तरह छन कर कोई पानी इसके अंदर अपने जाए, अपना जो सांस है वो यहाँ पे छन जाए। हमारे कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं कि हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर जब सांस लेते तो हमारी जो है सांस भी ऑपरेशन थिएटर के बाहर जानी चाहिए, थिएटर के अंदर जाएगी। तो जिस पेशेंट को हमने ऑपरेशन के लिए उनको खोल रखा है, उनके हिप जॉइंट को, जैसे बड़ी स्टोरी हिप जॉइंट से थी कि कैसे इसके इन्फेक्शन को, हिप ट्रांसप्लांट में इन्फेक्शन को रोका जाए। कहने का मतलब ये है कि आप तो बहुत अच्छी सुविधा में हैं कि आपको बहुत अच्छा ज्ञान है कि किस प्रकार से मास्क लगा के हमको ये करना है। ये फ्लू जब हुआ था, स्पेनिश फ्लू, जो कि वास्तव में तो स्पेन से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुआ था, इसलिए स्पेन की न्यूज आ गई तो लोगों ने कहा कि ये स्पेनिश फ्लू है, पर ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका से स्पेन में इन्फेक्शन आया था। और उसमें आप देखेंगे 500 मिलियन लोग बाग, मतलब 50 करोड़, मतलब कि जब देश हमारा आजाद हुआ था उस समय जितनी जनसंख्या थी उतनी दुनिया के अंदर लोगों को ये इन्फेक्शन हो गया था। और उसमें से करीब 5 करोड़ लोग बाग इस दुनिया में मर गए थे। 5 करोड़, ये लगभग जो है आंध्र प्रदेश की जो पहले पॉपुलेशन थी, इतने लोग दुनिया भर में उस समय मर गए थे। अभी जो आंकड़ा आ रहा है वो करीब, मेरे को जहां तक सही याद है, 2 लाख लोग मरे हैं। और अमेरिका में उस समय जो करीब जो है 50 लाख लोग उस समय भी अमेरिका में मरे थे। ये वो जमाना था जबकि दुनिया की पॉपुलेशन आज से करीब आधी थी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि आज हम बहुत बड़ी सुविधा में हैं, हमको बहुत सारी एजुकेशन मिल रही है मीडिया के माध्यम, या अभी जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, तो हम इन सारी प्रिकॉशंस को, जो बातचीतें करी गई है, उनका पूरा ध्यान रखें। और ये ब्रेन जो है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है। इज इट विजिबल टू एवरीबॉडी? हाँ हाँ। तो यहाँ जैसे आप आसमान में तारे हैं, ऐसे हमारे यहाँ गैलेक्सीज हैं, न्यूरॉन्स के ग्रुप हैं, ग्रे मैटर है जिसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। मैं जो न्यूरोबिक की बात कर रहा था, इन सबको कैसे आप स्टिमुलेट करेंगे तो ब्रेन आपका रिफ्रेश रहेगा, रिजुविनेट होता रहेगा और उससे शरीर आपका अच्छा रहेगा। उस चीज को दिखाने के लिए मैंने ये सब कुछ इंप्रेशन आपके मनोमस्तिष्क में डालना चाह रहा हूं कि ब्रेन इज ए वेरी बिग ऑर्गन जिसको नेचर ने यहाँ बड़ी अच्छी हड्डी से सुरक्षित किया है। और ब्रेन के अंदर कोई पॉइजन इजीली नहीं जा सकता है, इन्फेक्शन वगैरह, क्योंकि एक अंदर खून की नली और ब्रेन के बीच में ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, वो भी इसको किसी प्रकार से इजीली ये ग्रस्त नहीं हो जाए, ऐसा अंदर और बैरियर दिया है। आप लोगों को तो केवल मात्र एक मास्क पहनने की और दूरी रखने की बात कर रहे हैं। नेचर ने हमारे लिए कितनी व्यवस्थाएं करके हमारे इस शरीर को प्रिजर्व करके रखा है। एक छोटी सी चीज यदि हमने अपने जीवन में कर ली तो आप देखेंगे कि हम लोग बहुत कुछ अच्छा जीवन जी सकते हैं। ये जितने ऑर्गन है सबके अंदर ऐसा वायरल इन्फेक्शन लग सकता है, जितने ऑर्गन है, कोई ऑर्गन अछूता नहीं है कि जिसमें वायरल इन्फेक्शन नहीं लगता है। तो हर एक के लिए अलग अलग इनकी रूट की एंट्री होती है अपने शरीर में जाने की।
त्वचा से जाएगा, सांस से जाएगा, मलमूत्र के रास्ते से जाएगा। HIV जो जाता है वो जननेंद्रियों के माध्यम से भी जाता है, अधिकतर तो वहीं से गया हुआ था। अर्थात हमारे जितने भी ये ओपनिंग्स हैं शरीर के ऊपर और नीचे, और जितनी हमारी त्वचा है, इन सबको हमें बहुत अच्छी तरह साफ सुथरा और शक्तिशाली बना के रखना है। उसके प्रो नेचर एंड न्यूरोबिक्स के माध्यम से आप इन सबको अपने जीवन में कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि मैं बहुत ज्यादा इसकी गहराई में अभी नहीं जाना चाहूंगा, और यही कहूंगा कि प्रकृति ने हमारे अंदर कितनी सारी ऋतुएं बनाई है, उसका एक ही चीज है, एक ही कारण है कि आप अपने जीवन में भी इस तरह परिवर्तन लाएं। अलग अलग ऋतुएं जो बना के हमको न्यूरोबिक्स दी है प्रकृति ने, आप अपने जीवन में भी बहुत कुछ चेंजेस लाएं। एक जैसे नहीं रहे, मोनोटोनस लाइफ नहीं रहनी चाहिए। गीत होना चाहिए, संगीत होना चाहिए, दृष्टि की दृष्टि से हमको अलग अलग तरह की नेचुरल चीजों को देखना चाहिए। ऐसी कई चीजें जो न्यूरोबिक्स की अपन पिछले कुछ दिनों में बात करी थी, वो सब प्राप्त होएगी अच्छी तरह यदि हमने इस महत्वपूर्ण ऑर्गन द ब्रेन को समझ लिया कि ये न्यूरोबिक्स के माध्यम से हमारे शरीर को, ब्रेन की एक्सरसाइज के माध्यम से ब्रेन बॉडी को अच्छी हेल्थ दे सकता है। हंसी मजाक, फिर जितनी भी इंद्रियां हैं उनसे विविध प्रकार के जो उसके काम है, सुनने के, सूंघने के हैं, जो कलर थेरापी या स्मेल की थेरापी की बात करी जाती है, वह सभी हमें अपने जीवन में लेनी चाहिए। ये एक छोटा सा इसमें अपन संदेश दे देते हैं, और ओवर टू उमेश जी अगेन। हाँ सर, ये आप स्क्रीन स्टॉप कीजिए डॉक्टर साहब। ओके, स्टॉप द स्क्रीन। स्क्रीन अब मैं करूँ क्या? ओके, शायद कर दिया। हाँ, हाँ ओके, बराबर। तो आपने काफी अच्छा प्रेजेंटेशन बताया डॉक्टर साहब, और आपका फाइनल वर्डिंग यही था कि ब्रेन के अंदर जल्दी से इन्फेक्शन नहीं फैलता। हाँ, बहुत प्रोटेक्शन की चीजें रखी है। काफी मैकेनिकली नेचुरल हेलमेट दिया हुआ है रोड पे, जो एक्सीडेंट होते थे पहले, अभी लॉकडाउन में तो ये बहुत कम हो गए हैं, और हम लोग अभी बेरोजगार हैं न्यूरोसर्जन। और दूसरा होता है कि शरीर में यदि कोई भी अनवांटेड केमिकल्स गए हैं या इन्फेक्शन गया है, तो अंदर जो है खून और ब्रेन के बीच में ब्लड ब्रेन बैरियर इतनी गजब की चीज है जो कि हम लोग पढ़ते हैं, और वो काफी इसको हम ध्यान में रखते हैं। दवाइयां भी, जैसे पार्किंसोनिज्म को भी अंदर भेजने के लिए हमको उसमें किस तरह फेट में डिजोल्व हो सके, वैसी चीजों के साथ में देना पड़ता है। तो ब्रेन में जाने वाली मेडिसिन की भी बड़ी अलग ढंग से प्रिपेयर है। बढ़िया, काफी अच्छा बताया डॉक्टर साहब आपने। आज का सेशन सर, मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना है। हाँ, बोलिए। सर, मैं रवि किशोर सर से क्वेश्चन करना चाहती हूँ। वो सर अभी नहीं है शायद। जैसे सुनो कृष्णा, रवि किशोर साहब को डिस्कनेक्ट हो गया, अपन उनको डायरेक्टली मैं नंबर देता हूँ आपको, बाद में उनसे कर लेना, वो भी है नहीं। हाँ ठीक है ना। और डॉक्टर नरेश कुछ बोलना चाहेंगे फर्दर? So nothing like as we know, like nowadays COVID like thing only. पूरी दिन कोविड से जी रहा, प्रैक्टिस तो नहीं है, खाली घर में बैठ। ऐसे सभी सबका राशि अभी एक ही चल रहा सब। सबका राशि एक ही है, घर में बैठे। ठीक है। ये किशोर साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं, मैं पूछना नहीं चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ। आई वाज ऑन ए वेबिनार फ्रॉम 3 to 6 रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में हीरानंदानी बात कर रहे थे। निरंजन हीरानंदानी। अच्छा, तो क्या बोलते हैं? वो उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी। जैसे कोविड में अपने सब पॉजिटिव होना है, तो उसके लिए वो एक बता रहे थे कि उनको कोई क्वेश्चन किया कि जैसे ये रियल एस्टेट में वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो रियल एस्टेट की डिमांड कम होंगी वगैरह, ऐसा बता रहे थे।
तो वो हीरानंदानी बोले कि नहीं, घर अगर ऑफिस स्पेस की शायद डिमांड कम हो, लेकिन घर में कमरों की डिमांड बढ़ जाएंगी तो हाउसिंग सेक्टर में डिमांड बढ़ जाएगी. So how he has looked at a negative thing which was discussed time and again. Probably people more work from home culture will shift from people working from office spaces कम लगेंगी, नीड कम हो, रिक्वायरमेंट कम हो जाएंगी ऑफिस स्पेस की. So he said कि ऑफिस स्पेस कम हो सकती है लेकिन घरों की रिक्वायरमेंट बढ़ेंगी. घर में 2 बेडरूम का काम करता तो वो 3 बेडरूम का लेगा. बहुत बढ़िया. So we need to how we can see positive. Yes. बहुत so सही. how he looked at positive things of it. Thank you. बहुत सही केशव जी, बढ़िया बढ़िया बात. लास्टली एक जोक बोलना चाहूंगा डॉक्टर साहब. हाँ. क्योंकि मैं एयरलाइंस में हूँ तो एयरलाइंस के बारे में काफी जोक्स बना लिए थे. अच्छा. तो ये वर्क फ्रॉम होम का जो सिस्टम आया ना, हर कोई बोल रहा है कि मैं हम घर से काम कर लूंगा, घर से हो जाएगा मेरा काम. लेकिन हर काम घर से होता नहीं है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है. तो इस इम्पॉसिबिलिटी के लिए मैं एक चीज बताता हूँ. फ्लाइट में सब लोग आ गए, मतलब पूरे पैसेंजर्स बैठ गए और वो फ्लाइट टेक ऑफ करना था. इतनी देर में पायलट को कोई कॉल आ गया. तो उसको बोला गया कि मतलब आप आ जाओ नीचे फ्लाइट को छोड़ के. और वो नीचे आ गया और उसने एक अनाउंसमेंट कर दी, सर टुडे आई एम गोइंग टू वर्क फ्रॉम होम, यू आर नाउ, मतलब ऑटोमेटेड सिस्टम में फ्लाइट चलेगी. मींस कंट्रोल फ्रॉम द बेस. सभी लोग उतर के भाग गए नीचे. अच्छा. हमको नहीं जाना है उस फ्लाइट में, बिकॉज पायलट रहेगा नहीं और नीचे से कंट्रोल कैसे करेगा वो. सही है. तो वर्क फ्रॉम होम का ये एक डिसएडवांटेज भी है कि लोग डर जाते हैं. पर देखो धीरे धीरे कितना आदत में आ जाता है. जो वो डोगीज की बात बताई ना कि बॉम्बे के डोगीज साइड में स्विंग नहीं करते, वो ऊपर नीचे ही स्विंग करते हैं. तो थोड़े समय में शायद हमारी आदत में ही आ जाएगा कि हम कैसे जो है ये सब करेंगे, है ना. तो लास्ट में एक जोक और सुना दूं फिर मैं. हाँ बोलिए. मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के बाद में आके जो है चाय के इंतजार में एक पेपर देख रहा था. वाइफ चाय बनाती रही, आके देखती रही, एक ही पेपर को मैं ऊपर नीचे क्यों कर रहा हूँ. फिर उसको भी गुस्सा आ गया. उसने कहा कि एक बात बताओ कि ये आप इतनी देर से एक ही पेपर को ऊपर नीचे कर रखा है, ये क्या है आपके हाथ में. मैंने कहा ये अपना मैरिज सर्टिफिकेट है. तो वो बोली क्यों ऊपर नीचे कर रहे हो. मैंने कहा कि आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हेन इज द एक्सपायरी डेट. वो मिल नहीं रही. ठीक है फिर. राइट डॉक्टर साहब. और कुछ. थैंक यू डॉक्टर साहब.